जिक्र किया था कुछ limitations का, the limitations that these methods have, the Lewis Sorrell as well as the McCabe-Thiele method. उस पर दोबारा ये जरा पैराग्राफ हम अगर रिकॉल करें, this method, the McCabe-Thiele method, is one of the most important concepts in chemical engineering and is an invaluable tool for the solution of distillation problems. The assumption of constant molar overflow is not limiting, since in very few systems do the molar heats of vaporization differ by more than 10%. But still they do differ. हमने बहुत सी assumptions ऐसी की थी जो कि नॉन आइडियल सिस्टम, जो कि रियलिस्टिक सिस्टम्स पे अप्लाई नहीं होती. तो आगे देखें, द मेथड डज हैव लिमिटेशंस हाउएवर एंड शुड नॉट बी एम्प्लॉयड when the relative volatility is less than 1.3 or greater than 5. Number one limitation के relative volatility 1.3 और 5 के दरमियान ही होनी चाहिए. When the reflux ratio is less than 1.1 times the minimum, हमने आगे पढ़ा था कि the optimum reflux ratio lies between 1.1 and 1.5 times the minimum reflux ratio. तो अगर 1.1 से लेस पे लाई कर रही है रिफ्लक्स रेशियो, तब ये अप्लाई नहीं हो सकते थे. Or when more than 25 theoretical trays are required, right? In these circumstances, the Ponchon-Severett method described in section 11 used. हमने ये चीजें देखी थी. अब हम इसी Ponchon-Severett मेथड की तरफ जाते हैं, जो कि अगर आप समझ लेंगे तो वो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा वो है एक मतलब कि न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक है. ये चीज आप देखें कि ये चीज ये जो Ponchon-Severett मेथड है, दैट इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि हमने ये assumption की थी, जो इक्वेशंस डेवलप की, द टॉप ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन एंड द बॉटम ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, those contain the assumption that the heat of mixing is equal to 0, right? And the molar latent heat of vaporizations and condensation do not change over the column. अब ये ऐसा जाहिर नहीं होता. तो अब हम यहाँ पे जाते हैं कि अब नॉन आइडियल बाइनरी सिस्टम्स के लिए, जो कि ज्यादातर होते हैं चाहे रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक की तरफ आते हैं. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो टॉपिक है, that can be more helpful for your for obtaining the solutions of realistic industrial problems. क्योंकि हम आइडियल से रियलिस्टिक, अब वो कुछ assumptions हमने खत्म कर दी. अब अगर है मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चेंज हो रही हैं, तो फिर हम कैसे इस सिस्टम को डील करेंगे. तो देखें, इन प्रीवियस सेक्शंस द केस ऑफ कांस्टेंट मोलर लेटेंट हीट्स हैज बीन डिस्कस्ड विद नो हीट ऑफ मिक्सिंग and hence a constant molar rate of reflux in the column. These simplifying assumptions are extremely useful, ये बात माननी पड़ेगी, in that they enable a simple geometrical method to be used for finding the change in concentration on the plates, and whilst they are rarely entirely true in industrial conditions, they often provide a convenient start for design purposes. तो ये चीज समझने वाली है. ये आपको बिल्कुल ठीक कभी भी नहीं देती, लेकिन दे आर अ गुड स्टार्ट. एक हमने बिगनिंग की थी, ठीक है आपके पास, क्योंकि वो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं. For a non-ideal system, however, when the molar latent heat is no longer constant and when there is a substantial heat of mixing, the calculations become much more tedious. मुश्किल हो जाती हैं. For binary mixtures of this kind, a graphical model has been developed by Ruhiman, Ponchon and Severett. अब ये तीन आ गए हैं आफ्टर लुईस, सॉरल, McCabe and Thiele. इन्होंने फिर किया था कि अगर हम ये जीरो एज्यूम ना करें, हीट ऑफ मिक्सिंग को निगलेक्ट ना करें, और अगर मोलर लेटेंट हीट्स भी चेंज हो रही हों, तो फिर इस किस्म के आइडियल मतलब कि नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर्स के लिए Ponchon, Severett और Ruhiman ने एक और ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रपोज किया था. उसमें क्या है, इंथैल्पी कंपोजिशन चार्ट पे ये लाया करेगा. यानी कि अभी तक हमारे पास क्या था कि वी हैड x on x एक्सिस एंड y on y एक्सिस, यानी कि मोल फ्रैक्शन
composition of more volatile component in the liquid form on x-axis and composition of more volatile component in the vapor form on y-axis. अब हमारे पास डायग्राम होगी जिसमें we will have composition on x-axis and enthalpy on y-axis. A typical enthalpy composition of HX diagram chart is shown in figure 11.24. अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं. Now we will be doing calculations on a diagram like this. Sahi. Here we have on x-axis the mole fraction of more volatile component in the liquid phase, and on y-axis we have the enthalpy. And the data for drawing the dew point curve as well as the boiling point curve will be given. ये आपको given होगा, ये आप draw कर सकते हैं. अच्छा, ये ज़हन में रखेंगे, this only applies to binary systems. It will never apply to multi-component systems. However, the Lewis-Sorrell method, especially the Lewis-Sorrell method, is applicable for binary as well as multi-component systems. So we will have the data to draw the dew point curve, we will draw the dew point curve, and we will have the data to draw the boiling point curve, just like the VLE diagrams which you have studied in thermodynamics. तो ये हम draw कर लेंगे. उसके बाद क्या चीज करनी है हमने? फिर a quantity of mixture in any physical state is known as a phase and is denoted by mass, composition and enthalpy. तो इस डायग्राम में आपके पास वेरियस पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे A है, C है और B है. दे आर ऑल डिनोटिंग अ फेज, और फेज का मतलब ये है कि B मींस देयर इज सम mass, there is some concentration and there is some enthalpy. A means A is a phase having some mass, concentration and enthalpy. C is a phase having some mass, concentration and enthalpy. तो हर पॉइंट आपको एक स्ट्रीम की स्टेट बताएगा. Every point will denote a phase, a state of a stream inside a distillation column. If M is the mass, S X the composition and H the enthalpy per unit mass, then the addition of two phases A and B to give phase C is governed by. अब ये simple geometrical rules हैं. जैसे इन्होंने कहा है कि the use of this diagram is based on the geometrical properties. तो A और B को जब आप ऐड करेंगे तो C बन जाएगा. A माइनस B वो भी मुख्तलिफ उसमें हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है. देखें A पॉइंट, अब A ये से पॉइंट नहीं है बल्कि ये फेज बता रहा है, कोई कंसंट्रेशन एंथैल्पी वगैरह. ये B पॉइंट अगेन फेज बता रहा है. तो A प्लस B विल बी इक्वल टू C. ठीक है. अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, ये A यहाँ पे लाई कर रहा है और B यहाँ लाई कर रहा है, तो इनका जो कम्युलेशन है, कम्युलेटिव फेज जो है वो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट C. सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि A माइनस B इज इक्वल टू C. A माइनस B इज इक्वल टू C. तो तीन पॉइंट्स हैं जो कि तीन फेजेस को डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों को हमने माइनस करके निकाल लिया है. जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया है, ये पूरा जो है वो Q है. लेट्स से ये पूरी जो एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी इज ऑन y एक्सिस, तो ये Q है. तो A ये पॉइंट है, A को जब Q में प्लस करेंगे तो फिर ये पॉइंट आ जाएगा C. यानी कि बेसिकली आपके पास इस डायग्राम में मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होंगे ना, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम वो पॉइंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आए हुए होंगे. सो एडिशन है MA प्लस MB इज इक्वल टू MC, और जब आप कंपोजिशन में बात करेंगे तो MA XA प्लस MB XB इज इक्वल टू MC XC, और जब एंथैल्पी में बात करेंगे तो MA HA प्लस MB HB इज इक्वल टू MC HC. Similarly, if an amount Q of heat is added to a mass MA of a phase, the increase in enthalpy from HA to HC will be given by this. HA plus Q over MA is equal to HC, जो कि यहाँ पे शो किया मैंने. Thus, the addition of two phases A and B is shown on the diagram by point C on the straight line, whilst the difference is found by point C on the extension of the line AB, etc. तो ये हमारे पास उन्होंने थोड़ी सी तमहीद बांध दी है कि इस डायग्राम में आगे जब हम पॉइंट लोकेट करेंगे तो
इसमें कुछ जो कंक्लूशंस हैं, डिडक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो ये हैं कि हर पॉइंट आपको कोई ना कोई कंसंट्रेशन और एंथैल्पी शो कर रहा होगा, और मुख्तलिफ जगहों पर जो आपके पास, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये जो दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन है, ये सारी Q शो कर रही है और ये A पॉइंट है, तो A प्लस Q विल बी इक्वल टू C, अगर इसको हम C कहते हैं तो ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास, अच्छा अब ये इसमें मटेरियल बैलेंस अगेन अप्लाई करेंगे। मटेरियल बैलेंस से कुछ इक्वेशंस निकलेंगी, इक्वेशंस जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने जो मैकेब थी लुईस सॉलर में किया था, कि उन इक्वेशंस को फिर हम उन इक्वेशन से हम निकालेंगे कि इनसे क्या पता चल रहा है कि इस कंसंट्रेशन एंथैल्पी के डायग्राम पे कौन सा पॉइंट किन वैल्यू से आ सकता है। तो इसलिए जो ये इक्वेशंस की डेवलपमेंट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये अगेन सिंपल मैथमेटिक्स से हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन इस मेथड की जो एप्लीकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैथमेटिक्स की तो मैनिपुलेशंस वगैरह आपको पता है, डेरिवेशन नॉट इम्पोर्टेंट बट एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ अगेन उन्होंने इसी तरह की डायग्राम देखें दिए, वी हैव सीन इट बिफोर एज वेल, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन है। आप देखें कि QC ऐड की है और यहाँ पे अब ये मैथमेटिकली भी ऐड होगा। QC इज द हीट इवॉल्व्ड और रिलीज्ड इन द कंडेंसर, ठीक है। QB इज द हीट इवॉल्व्ड और इज द हीट सप्लाइड इन द रीबॉयलर, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐड होगी, QC द हीट इन द कंडेंसर, जो कि उसमें से निकलते जा रहे वेपर्स में से उनको जब कंडेंस कर रहे होते हैं तो देयर विल बी सम हीट रिलीज्ड, एंड देन रीबॉयलर उसमें जो हीट ऐड कर रहे हैं आप अपने सिस्टम में, ठीक है। तो ये दोनों भी चीजें ऐड हो गई। अब चूंकि हमारी इक्वेशंस में पहले कंपोजिशन आती थी, yn था, ln था, vn था, यानी कि ln, vn, vm एंड lm they were flow rates, the flow rates in the liquid and the vapor phases, और आपके पास जो yn, xn और ये सारे थे, ये थे कंपोजिशन थे। अब आपके पास इंथैल्पीज भी आ जाएंगी। तो ये इन्होंने कहा है कि फिगर में क्या क्या चीजें हैं, dxt, you are already familiar with these terminologies. Then the plates are numbered from the bottom upwards, subscript n indicating the rectifying and m the stripping section. ये पहले भी हम देख चुके हैं। अच्छा, अब न्यू एडिशन क्या है, HV and HL represent the enthalpy per unit mass of a vapor and liquid stream respectively, right? QC is the heat removed in the condenser. In this case, no cooling or product is considered. QB is the heat added in the reboiler. The following relationships are then obtained by taking material and heat balances. तो उसमें से मटेरियल बैलेंस से आपने निकाल ली थी क्वेश्चंस, यहाँ पे आप हीट बैलेंस भी लगाएंगे। तो सिंपल Vn is equal to Lm, you have studied that previously as well. ये दोनों इक्वेशंस आप पढ़ चुके हैं, 11.77 एंड 11.78। अब न्यू देखते हैं, देखें इंथैल्पी की इक्वेशन, Vn HnV is equal to Lm plus 1 Hn plus 1 L plus DHDL plus QC, ओके। QC भी जाहिर है इवॉल्व हो रहे हैं, QC एंड DHDL, हर जो स्ट्रीम है उसके साथ उसकी इंथैल्पी को ज्वाइन कर दिया है इन्होंने। सो Vn HnV is equal to Ln plus, इसको हमने माइनस करके, मतलब इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये इक्वेशन बना दी। Now putting this this HDL plus QC over D, right? इसको हमने अब नया एक टर्मिनोलॉजी दे दी है H-D। ये बुक का वो है, उन्होंने इन दोनों टर्म्स को HDL plus QC over D करके कंबाइन कर लिया और उसको H-D का नाम दे दिया। अच्छा, HDL है क्या, इंथैल्पी ऑफ द लिक्विड इन द टॉप प्रोडक्ट, यानी कि इंथैल्पी ऑफ द टॉप प्रोडक्ट। QC क्या है, द हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर, और D क्या है, टॉप प्रोडक्ट। So HDL plus QC over D is denoted by H-D। तो फिर आपके पास इक्वेशन 11.7 कैसे हो जाएगी, ये we have now inserted H-D
डी हेयर, तो ये हो गई, और उसको अगेन 11.78 7.7 की तरह इसी फॉर्म में ले आए। सो फ्रॉम इक्वेशंस अब हमने दो तीन इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया, 11.77 और 11.78 को मिला के Vn को अगर रिप्लेस कर दें Ln प्लस 1 प्लस डी से, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। और 11.77 और 11.80 से आपके पास ये इक्वेशन बन गई। हमने क्या करना था कि Ln प्लस 1 प्लस डी जो है ना, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया दोनों में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसमें चूंकि हमने इस तरह की ग्राफ प्लॉट करना है, तो वी नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड h, वी नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंथैल्पी। अब जो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी है ना, इनसे हम क्या करेंगे कि ये जो है ना L D V N वगैरह, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हैं स्ट्रीम्स। हमने क्या किया कि Ln प्लस 1 प्लस डी को एक तरफ कर दिया है और दो इक्वेशंस बना लिए हैं। एक इक्वेशन है जिसमें Ln प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू कंपोजिशन, और दूसरी इक्वेशन में Ln प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू एंथैल्पीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Ln प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू कंपोजिशंस, ठीक है। ये आई है 11.77 और 11.78 से, Vn को रिप्लेस कर दिया बाय Ln प्लस 1 प्लस डी, और इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह 11.77 और 11.80 से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, Ln प्लस 1 ओवर डी इज इक्वल टू h डैश डी माइनस एच एन वी ओवर एच एन वी माइनस एच एन प्लस 1 एल। तो अब आपके यू कैन इजीली इक्वेट इक्वेशन 11.81 एंड 11.82 बिकॉज दे हैव द सेम लेफ्ट हैंड साइड्स। तो इन दोनों को अब आप इक्वेट कर लें जो कि हम चाहते थे। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड कंपोजिशंस। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम कुछ पॉइंट्स एंथैल्पी कंपोजिशन डायग्राम पे लगा सकते हैं। अब जो लोग फेमिलियर हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, और हमने थोड़ा सा वहां पे भी डिस्कस किया था, जो हमने ह्यूमिडिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा था कि हम कैसे, वहां पे था ना, आपको याद होगा कि दिस डिनोट्स दैट इट इज अ लाइन ऑफ स्लोप फ्ला फ्ला पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें यहाँ हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों जब हमने इक्वेशंस को इक्वेट किया है तो हमें मिल रहा है कि कुछ पॉइंट हैं जिनमें से लाइन पास हो सकती है, वो आगे उसका जिक्र है। अच्छा, इसको फिर एक्सटेंड करके अगर हम यहाँ से ज़रा मैथमेटिक्स को वो करके yn निकालें, अब इस ये कैसे करेंगे, इसको yn माइनस एक्स एन प्लस 1 को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, फिर आप इसको नीचे कर लें, और सारा आप आफ्टर सेवरल मैथमेटिकल steps we arrive at this equation, which is the equation of straight line. Yn is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c. अच्छा, अब लेकिन equation 11.84 represents any operating line relating the composition of the vapor rising from plate to the composition of the liquid reflux entering the plate, or alternatively it represents the relation between the composition of the vapor and liquid streams between any two plates. Basically ये इन्होंने वैसे एंथैल्पी का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें वो मिल चुका है जो हमें चाहिए था, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन दी कंपोजिशन एंड द एंथैल्पी। अच्छा, लेकिन आप गौर करें 11.83, दिस इक्वेशन 11.83 इज बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट देन दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिस्टिलेशन कॉलम ग्राफिकली। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को यूज नहीं करना, वी विल नॉट सॉल्व इट न्यूमेरिकली, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बता रहा है, from equation 11.83 it may be seen that all such operating lines pass through a common pole point, कहते हैं common pole n of coordinates xd and h dash d, xd and h dash d। तो एक पॉइंट n जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो xd होंगे ऑन x एक्सिस एंड h dash d होगा y एक्सिस पे, वो पॉइंट है जिसमें से तमाम जो ऑपरेटिंग लाइंस हैं वो पास करेंगी।
ये आपको जो लाइंस की के फार्मूलाज होते हैं वो ये बता देते हैं, ठीक है। Alternatively, noting that a left-hand side of equations are independent of condition below, a stream n may be defined with mass equal to the difference between the vapor and liquid stream between the two plates of composition xd and of enthalpy h dash d, right? The three quantities vn, ln plus 1 and n are then on a straight line passing through n, ठीक है। तो ये बेसिकली बात ये है कि एक पॉइंट आ जाएगा जो जिसमें एक्स एक्सेस आपका एक्स डी होगा और वाई एक्सेस होगा एच डैश डी, और बाकी सारी जो स्ट्रीम्स हैं एल एन प्लस वन वी एन वगैरह वो उसी में से पास हुए हुए स्ट्रेट लाइन में से में लाई करेंगी। तो ये जब हम इसको देखेंगे ग्राफिकली देन इट विल बी क्लियर टू यू कि किस तरह वो आ रही हैं, सारी चीज़ें वहीं से लाइन से ही निकल रही हैं। इसी तरह आपने ये जो टॉप प्लेट पे लगाया बॉटम प्लेट पे भी बिल्कुल वही स्टेप हमने रिपीट किए हैं। 11.85 then 11.86 and then using the enthalpies, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशंस बनी हैं वो ये हैं, इन पे गौर करें। ये इक्वेशन जस्ट लाइक 11.83 दिस 11.92 ये भी आपको बता रही है, क्या बता रही है? दिस इक्वेशन 11.92 रिप्रेजेंट्स any operating line below the feed plate, वो थी above the feed plate, and it shows that all such lines pass through a common pole M having coordinates xw and h dash w, xw and h dash w. As with a rectifying section, a stream M may be defined by mass, composition and enthalpy. तो वो हमने पहले बता दिया कि अब आपकी ये जो डायग्राम होगी उस पे हर पॉइंट जो है वो एक फेज को डिनोट करेगा या एक स्ट्रीम को डिनोट करेगा जिसके कुछ मास होगा, कंसंट्रेशन होगी और कुछ इंथैल्पी होगी। Thus, writing the total balance F is equal to M plus N. We have for a component, for the more volatile component, Fxf is equal to Mxw plus Nxd. It therefore follows that phases F, M and N, अब ये तीन phases हैं। F भी जाहिर है फीड जो है उसकी कोई कंसंट्रेशन है कुछ एंथैल्पी है, M कुछ कंसंट्रेशन कुछ एंथैल्पी, N कुछ कंसंट्रेशन कुछ एंथैल्पी, are on a straight line on the HX chart as shown in figures 11.27 and 11.28. अब यहां पे जरा गौर करें आप, ये इन्होंने ये जो इक्वेशंस आई है ना उससे ये चीज पता चल रही है कि पॉइंट एन आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया कि ये बना ली ड्यू पॉइंट कर्व एंड बबल पॉइंट कर्व, ठीक है, दैट विल बी गिवन, द डाटा विल बी गिवन टू ड्रॉ दीज कर्व्स, राइट। अब आपने लोकेट करना है एन, एम और एफ को इसी फिगर पे। ये ऐसी है जैसे आप पढ़ चुके हैं, बल्कि मास ट्रांसफर में लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन तो आप कर चुके हैं ना, उसमें आप टर्नरी डायग्राम पे लोकेट करते थे एफ पॉइंट, करते थे ना, एफ पॉइंट करते थे, फिर उसको मिलाते थे, फिर वहां से मुख्तलिफ मतलब कि अगेन ज्वाइन करते थे, एम पॉइंट से थ्रू करते थे। ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता चीज है, सिनेरियो है। वहां पे भी यही होता था कि वेरियस पॉइंट्स, द एफ पॉइंट, द एम पॉइंट, ये वो कोई ना कोई आपको कंपोजिशन वगैरह डिनोट कर रहे होते थे डायग्राम्स में, कि ये एफ पॉइंट का मतलब है कि 30% एसीटोन है, 40% बेंजीन है और बाकी 30% टोलिन है। इसी तरह यहाँ पे भी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि n जो पॉइंट है अगर आपके पास xd हो, जो कि गिवन होता है, हमने देखा है कि अब तक की तमाम जो एग्जांपल्स हैं हमें पता होता है कि कितनी प्योरिटी हमें प्रोडक्ट की चाहिए, तो xd विल बी गिवन। h डैश d अगर हमें पता चल जाए, यानी कि h डैश d क्या है, HDL प्लस QC ओवर d। अच्छा, d हमें पता है, ये देखें, ये h डैश d इज इक्वल टू HDL प्लस QC ओवर d। अब डिस्टिलेट हम निकाल सकते हैं वहीं से, जैसे F इज इक्वल टू D प्लस W से निकालते थे। QC इज हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर, ये हमें पता होनी चाहिए, हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर, ये अगर हमें पता हो। अच्छा, और HDL पता हो, यानी कि जो टॉप प्रोडक्ट है उसमें कितनी हीट है,
तो हम एच डैश डी निकाल सकते हैं। और अगर हमें एच डैश डी और एक्स डी पता हो जाए तो हम इस पॉइंट एन को लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट एम हम लोकेट कर सकते हैं अगर एक्स डब्ल्यू हमें पता हो, जो कि हमेशा पता ही होगा, और एच डैश डब्ल्यू हमें पता हो। तो एच डैश डब्ल्यू जो है वो सिंपली आपके पास इसी तरह एच डब्ल्यू हो जाएगा प्लस क्यू बी ओवर डब्ल्यू होगा। तो अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल जाए, एच डैश डी एंड एच डैश डब्ल्यू, तो आप एन और एम जो फेजेस हैं उनको अपनी डायग्राम एफ सिमिलरली एफ अगर हमें हमें एफ के लिए क्या चाहिए, एक्स एफ और एच एफ। एक्स एफ और एच एफ अगर हमें पता हो तो एफ लोकेट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी है कि एफ अगर हमें ना भी दिया हो, यानी कि इंथैल्पी अगर ना भी पता हो, तब भी हमारे पास दोनों का एक मतलब कि बहुत से तरीके हैं कि हम अगर 2 पॉइंट मालूम हो जाए तो तीसरा पॉइंट खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे? अगर एन और एम मालूम हो तो यू जस्ट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग एन एंड एम, और वो जहां पे कट करेगा, क्योंकि अगर फीड है लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो जाहिर है ये बबल पॉइंट कर्व पे लाई करेगी। तो जहां पर ये बबल पॉइंट कर्व को कट करेगी दैट विल बी योर फीड, राइट। इसी तरह अगर फीड की हमें पता हो, अगर फीड की लोकेशन पता चल जाए और एन की सिर्फ ये चीज मालूम हो, तो आप यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एन एंड एफ, इसको एक्सटेंड करें, और आपको एक्स डब्ल्यू तो पता ही होगा, एक्स डब्ल्यू पे जहां पे ये कट करे वो आपके पास एम पॉइंट है। सिमिलरली अगर आपके पास एक्स डब्ल्यू और एच डैश डब्ल्यू पता है तो, और एफ पता है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करें, इसको एक्सटेंड करते रहें करते रहें करते रहें, जहां पे एक्स डी की लाइन आती है एक्स डी तक वो जो पॉइंट होगा दैट विल बी योर पॉइंट एन। तो इसलिए इफ यू हैव एनी टू ऑफ दीज 3 पॉइंट्स एन एम एंड एफ, you can easily locate the third point। उसके बाद क्या करना है, अब अभी हमें पर लोकेशन हो गई, मतलब कि हमारा जो सेटअप था ना वो बन गया। अब हमने नंबर ऑफ प्लेट्स निकालनी है।